Yeah, my mom, I have to move them to a secure locations. And she's like, यार तू मत कर ये सब ठीक है, तुझे कुछ हो जाएगा. But do you think that this platform has enough power today that it gives a call out? You all get out and vote for this party in the next elections. Why do you think our account is being withheld and just got hacked? लेकिन कल के बाद जो हुआ है, उसके बाद अब मेरी प्रायोरिटी यही है कि कुछ भी करके इस मूवमेंट को बदनाम नहीं होने देना है. Why do you think I have to make an open statement that I won't be going on any Godi media channel? It was the pressure of these kids. You तो मीडिया gave से one to India Today though. और जैसे अपने व्हाट्सएप की बात की, इन लोगों ने व्हाट्सएप तो पेनिट्रेट कर दिया, ठीक है, बट ये इंस्टाग्राम पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे. एंड पॉलिटिक मतलब एक पॉलिटिकल ओपिनियन दूं इस पर, तो द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज ये जिन मुद्दों पर सरकार बनाई थी इन्होंने फर्स्ट टाइम, आज भी ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं. इनके पास नया कुछ बोलने को है नहीं. दे हैव बीन सेइंग द सेम थिंग्स दे हैव बीन सेइंग सिंस नरेंद्र मोदी स्टार्टेड हिज पीएम कैंपेन. Every single cockroach out there follow News Laundry right now. Welcome to News Laundry Interviews. We have with us Abhijit today, who's been in the middle of a crazy storm for about a week now. He is the founder of Cockroach Janata Party. Can I call you the founder? Of course. So Abhijit, as we अभी हम सैटरडे सुबह ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके लिए बॉस्टन में 2 बज रहे हैं, मेरे यहाँ 12 बज रहे हैं. इट्स बिन अ क्रेजी वीक फॉर यू, बट आई जस्ट वांट टू गेट टू अंडरस्टैंड क्विकली अभी क्या हुआ है. आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, आपका ट्विटर विथहेल्ड हो गया है, आपको डेथ थ्रेट्स आ रही हैं. व्हाट हैव द पास्ट 24 आवर्स बीन लाइक फॉर यू? So in last 24 hours, first of all, my private Instagram account has been hacked. That happened yesterday. And today our official Cockroach Janata Party's Instagram page has also been hacked. I no longer have access to those account. And just before this hacked, आप अभी साइन इन नहीं कर पा रहे हो इंस्टाग्राम? I can't. I have tried all the means to recover the account, but I just can't. Okay. And just before this interview, our official website has also been taken down. Your official website has been taken down. It had one campaign to get the resignation of the education minister. Yeah, we have received almost 5 lakh sign-ups for that on that petition, and more than that, we have received 1 million registered members. Wow. And it's been pulled down. Yeah, it has been pulled down. And what about the personal messages that you're getting? You said that you're getting death threats. Can you tell our viewers the nature of what you're feeling and what you're getting right now in terms of the death threats, the trolling or whatever? So this is not the first time that I am getting death threats, but online I always get them for speaking up against the BJP. But right now it is coming to my WhatsApp. एंड नाउ दे आर सेइंग कि तू यूएसए में है तो क्या हुआ, तेरे माँ बाप तो यहीं पर रहते ना, घर पर जाकर उनके मुंह में गोली डाल देंगे एंड स्टफ लाइक दैट. इट्स गेटिंग लाइक रियली इनसेन. एंड वन ऑफ द पर्सन इवन सेंड मी अ वीडियो दैट आई एम जस्ट गोइंग टू योर होम, आई एम जस्ट रीचिंग देयर एंड वॉच व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट 2 आवर्स. ये वीडियो आपको व्हाट्सएप पे भेजा किसी ने? यस. ओके. एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितने मैसेजेस आपको आ रहे हैं ऐसे? Until now, I might have got 30-40 messages. And someone has just texted me just before this interview that we have got all your data from your Google IDs and passwords. We have all that with us now. And we know where do you live, where you have stayed in the past and everything. And they have got pretty much accurate data. Like I used to live in Pune 10 years ago. They exactly know in which flat I used to live and where I used to live. I don't know how they got it. And what are they saying? They are just saying, don't you think that you can get away with this? You are going to face the consequences and we are not going to let you go now. You shouldn't have started this. So Abhijit, for you, I mean, it's too much to take because आपने शुरू करा सटायर से और एक बार बिल्कुल बोनाफाइड पॉलिटिकल थ्रेट बन गए हैं. जिस तरह से हमने इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज स्टोरी पढ़ा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को ये आईबी ने इनपुट दिया कि आप एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, कॉकरोचेस एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है. So tell us how you're processing this. First up, you started something as satire, right? Your idea was not कि मैं एक political party form करूंगा, obviously. Yeah. So I find it very laughable that something as small as a satire or a joke, they are feeling so scared by it. I don't know why. I don't get it. I mean, why would you withhold an account which has just started before 4 days?
It has not even been 4 days, and they just banned that account in India. For what? Like, we didn't post anything that would, give a call for violence or something. In fact, I have been on every interview saying that we believe in the Constitution of India. We are very democratic people, and whatever we will do, or we will take a step, it will be within the rights of the Constitution. I don't know how they can still call us that threat to the national security. Does that mean whoever will speak up against unemployment or whatever is happening in the NEET, a 17-year-old kid committed suicide, we are speaking for them? So is speaking for them a national threat to the country now? Like, they didn't even give a single reason or a single post that we made could be labeled as national threat. They provided no notice. So take us back to the day. 19th May, you started this? No, I think it started on 15th or 16th May after the CJI's comment. So 16th May, you started this. Just tell us what was going in your head when you started this. No, nothing. I just went for workout. I came back and I just saw this statement and I was like, how can he say that? He's the custodian of the Constitution. He's supposed to protect our freedom of expression, the fundamental right. So yeah, I was quite upset with the statement, and I just made a personal post from my Twitter ID saying that how can the Chief Justice of India compare the youth with cockroaches just for expressing their opinions? And why would he be so bitter to call them unemployed, lazy, and they do nothing? They just get on social media or media. Why somebody who is the custodian of the Constitution would say that? So I just made a simple post that what if all cockroaches get together? And that particular tweet of mine received great traction, especially from the Gen Z, who started commenting that yes, we should get together. We should maybe form our own platform or something like that. So that gave me an idea. So why not launch a satire party just to take a dig at the institutions and the government? It's the best form of satire because जो insult आपको जो फेंकी गई है वही आप लेके उसको just own it up. Yeah. So with that intent, I just created a poster from using AI and put the cockroach at the center of it, and I called it the Cockroach Janta Party. And I used the criteria, the same words the CJI used to insult us. That you have to be lazy, you have to be unemployed, you have to be chronically online, and you should be able to rant professionally to be a member of this party. And with that, I attached a Google form created by my personal email ID. And somehow within a couple of hours, we received 5,000 signups. And that is when I realized, okay, it is not as small as I thought, because my intent was only कि मैं एक बार एक ट्वीट कर दूंगा, मे बी 100-200 रिट्वीट आ जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं. But I just wanted to put my opinion on it. That was the only intent. But when जब 5,000 साइनअप्स आ गए, उसके बाद मुझे लगा कि लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है इस चीज को लेकर, तो इसको थोड़ा करते हैं आगे कुछ. एंड विद दैट इंटेंट आई थॉट कि चलो वेबसाइट भी बना ही लेते हैं, अब इतना सब कुछ कर लिया तो वेबसाइट भी बना ही लेते हैं. तो एआई की हेल्प से हमने वेबसाइट बना ली. वहां पर वो हमने 5 पॉइंट्स डाल दिए मैनिफेस्टो में, अबाउट एवरीबॉडी इज टॉकिंग नाउ. तो उसमें वो था कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी. अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर लेजिट वोट डिलीट करता है तो उसको अरेस्ट करना चाहिए. डिफेक्शन कोई करता है तो उसको 20 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ना देना चाहिए. वुमेन को 33% क्यों 50% रिजर्वेशन देना चाहिए. ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ वी जस्ट टॉक्ड अबाउट. और वो मैनिफेस्टो से अपील होकर विद इन अ डे वी हैड 50,000 साइनअप्स. एंड आफ्टर दैट इट जस्ट केप्ट गोइंग बिगर एंड बिगर एवरी पासिंग डे. और एक वीक के अंदर आज हमारे पास 1 मिलियन साइनअप थे. आज हमारी वेबसाइट बंद पड़ने से पहले 1 मिलियन साइनअप्स. सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड. So started as a satire and purely your idea, या आपके पास मतलब आपने किसी के साथ ब्रेनस्टॉर्म करा, सोचा कि मैं किसी से बात करके कुछ शुरू करूं? नॉट एट ऑल. करते गए अपने आप. मैं ऐसे ही डाल दिया बिकॉज आई वाज लाइक ठीक है, मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं कुछ बोल देता हूँ अपनी पर्सनल आईडी से, तो मैंने उतना करने के लिए मैंने बोल दिया. सो इन वन वे अभिजीत, मतलब दिस हैज वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी हैज बीन इट्स बीन थ्रोन एट यू बाय डेस्टिनी. समटाइम्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स. आपने सोचा नहीं कि भाई आप कुछ ऐसा मूवमेंट करेंगे, कुछ करेंगे. आपने एक एक्सप्रेशन करा और वो बिल्कुल स्नोबॉल हो गया into something so much bigger than what you would have ever imagined. So I want to understand 2 things from you and take your time to answer the question. एक तो आप कि ये 1 हफ्ते की लर्निंग
जेंजी के बारे में, क्योंकि हम्म आपके पास सबसे ज्यादा जो अभी कैप्टिव ऑडियंस है वो जेंजी हम्म ऑडियंस है, हम्म, यंग ऑडियंस है, जो शायद आपको बहुत तंग भी कर रहा होगा कि भाई कुछ करो, बहुत कुछ ज्यादा करो, बहुत ज्यादा। है ना, कि भाई अब कर दिया तो कुछ करके दिखा भाई। अरे वो भी मुझे धमका रहे कि तू अब पीछे मत हटना। हमने होप छोड़ दी थी कि यहाँ पर कुछ हो सकता है इस सिस्टम में, हाँ। बट हम नहीं सोच रहे थे, हमें नहीं लग रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसा कोई प्लेटफॉर्म बन सकता है, इतने सारे लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन अब ये हो गया तो तुम बिल्कुल भी पीछे मत हटना, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अलग प्रेशर और अलग धमकियां उनसे भी मिल रही है मुझे, बट दोज आर विद द एक्सपेक्टेशंस, नॉट लाइक टू इंटिमिडेट मी और टू स्केयर मी। हाँ, तो एक तो मुझे आई वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपके पास 18 मिलियन कैप्टिव ऑडियंस है, जिससे आपको एक सेंस पता चल रहा है कि भाई यूथ ऑफ इंडिया चाह क्यों रही है, और वो इतना यू नो भर भर के क्यों ये कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। सो वन क्वेश्चन इज दिस, एंड सेकंड योर ओन मेंटल स्टेट राइट नाउ, बिकॉज हाउ आर यू डीलिंग विद दिस thing that has snowballed out of complete control? I mean, I'm sure you feel like, okay, is this even in my control anymore? Yeah, and sometimes I even wonder, is this really happening? हाँ। बिकॉज दिमाग में तो वही चलता है कि ये कैसे हो गया, मैं 4 दिन पहले तो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था, आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब इन द यूएस, और अभी ये एकदम से क्या हो गया। आई एम हाँ। इन द हेडलाइंस, मुझे नेशनल नेशनल थ्रेड बताया जा रहा है सिक्योरिटी के लिए, एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ इज हैपनिंग। आई केम हियर टू हैव अ बेटर लाइफ, यहाँ से डिग्री ले लूंगा, पढ़ाई कर लूंगा, जॉब ढूंढूंगा, हम्म। और अभी अब एकदम से ये अलग ही टर्न ले लिया है, जहां पर आज मुझे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेड बोला जा रहा है। हम्म। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। हम्म। एंड कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो जेंजी का ऑडियंस है, हमारे पेज पर ऑलमोस्ट 80% ऑडियंस जेंजी है, हम्म। एंड बिलो द एज ऑफ 28। बिलो दीज द, आर, तो आपका डेमोग्राफिक क्या है, तो हमारा एज यू मीन वाइज? लोकेशन वाइज? लोकेशन और एज वाइज तो आप मतलब 28, 20 से 28 या 18 से 28, क्या मतलब आपका इट्स वो? फ्रॉम 17 to 28। 17 to 28 का ऑडियंस या है। हम्म। या और और दूसरा है, मोस्टली मेन है या मोस्टली विमेन है? 25% ऑफ देम आर वुमेन। ओके, विच इज क्वाइट समथिंग, बिकॉज मेनी इन आई मीन द न्यूज मिसेस एंड वी नो इट कि हैज ऑलवेज बीन इन द सिंगल ऑडियंस डिजिट्स, और मैक्सिमम 10 to 11 डिजिट्स, वुमेन का उतना ही रहता है, बट यहाँ 25 है, विच इज ऑलमोस्ट 25%। डबल। या हाँ। और इसका और कंटेंट भी सारे विमेन ही बना रहे हैं, लाइक ऑल दीज यंग गर्ल्स, दे आर मेकिंग द कॉकरोचेस, डू यू सपोर्ट बीजेपी और डू यू सपोर्ट कांग्रेस, एंड दे आर लाइक आई सपोर्ट कॉकरोच। द इंस्टाग्राम इज flooded with all these kind of reels, but sadly I cannot see them anymore since I don't have the access to my accounts. हाँ, Yeah. सो 17 to 28 इज योर एज गैप, और कौन सी सिटीज से हैं ज्यादातर ये यंग लोग? Top city is Delhi, second city is Mumbai, third city is Bangalore, fourth is Pune, fifth is Kolkata. ओके, सो मेट्रोपॉलिटन सिटीज। Yeah. और जब आप इनकी बातें सुन रहे हो तो क्या इनकी सबसे बड़ी कंसर्न्स क्या हैं इस यूथ? सबसे बड़ी कंसर्न्स तो यही है, मतलब एक जो अंडरलाइंग फीलिंग है सब में, कि हम्म। द सिस्टम इज नो लॉन्गर अकाउंटेबल, और ये देश का सिस्टम कभी सुधर नहीं सकता। दैट इज हम्म। द बिगेस्ट अंडरलाइंग फीलिंग एवरीबडी हैव, लाइक आई वुड हैव स्पोकन टू एटलीस्ट hundreds of people of them, जो मुझे पर्सनली मैसेज करें, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू एवरीवन, आई हैव बीन स्टेइंग अवेक इवन फॉर दैट। सो मैं इंटरव्यू देता हूँ, और उसके उसके बाद मैं इन लोगों से चैट करता हूँ, हम्म। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड देम। तो एक अंडरलाइंग फीलिंग बहुत ही ज्यादा है, दैट दे हैव कंप्लीटली गिवन अप ऑन द सिस्टम, हम्म। कि दिस सिस्टम इज नो लॉन्गर सर्विंग अस। हम्म। ना ये हमारी बात सुनते हैं, ना ये हमारी बातें करते हैं, और जब हम कुछ बोलते हैं तो अब हमें ऐसे ह्यूमिलेट किया जाता है। हम्म। तो उनका तो मतलब पूरा भरोसा ही उठ चुका है, दे हैव हम्म। टोटली गिवन अप। तो वही वही है। और सेकंड चीज ये है, जो नीट और सीबीएसई का आ रहा है, मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन राइटिंग टू मी हम्म। कि नीट में इतना सारा घपला हो रहा है, उसके बाद भी क्या किया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम्म। और इसमें हमारी क्या गलती है, वाई शुड वी बी पनिश्ड। ये तो सीबीएसई में सबसे ज्यादा फीलिंग थी, बिकॉज सीबीएसई में पेपर रीचेकिंग में इन्होंने कुछ घपला किया, हम्म। एंड आफ्टर दैट दे सेड दैट वी विल रीचेक द पेपर, एंड वी विल गिव यू, वी विल रिकरेक्ट योर मार्क्स। तो हम्म। उसमें भी बच्चों से पैसा मांग रहे हैं। ऐसे केसेस एंड हमारे सामने आ रहे हैं कि हाँ, बच्चों से पैसे या मांग। या और उसमें बच्चे बोल रहे हैं कि गलती तो इनकी है, हमने तो कोई गलती नहीं करी थी, हमने तो एग्जाम दे दी, हमारा काम वहीं पर खत्म हो गया। यू कमिटेड अ मिस्टेक, एंड हाउ कैन यू एक्सटॉर्ट मनी आउट ऑफ अस नाउ हम्म। फॉर समथिंग रॉन्ग दैट यू डिड। हम्म। तो ये ज्यादा है। और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बहुत ज्यादा है, हम्म। लाइक इवन दो द मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस इज फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, लेकिन लेकिन जितने भी मुझे थोड़ा सबर्बन एरिया से मैसेजेस आ रहे हैं, टीयर 2 टाउन से आ रहे हैं, हम्म। तो वो उनका अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर ज्यादा है सबसे। टियर 2 टाउन्स में कौन से ज्यादा आपको सबसे ज्यादा टाउन से मैसेजेस आ रहे हैं? जैसे ये तो मेट्रो सिटीज हो गई, हाँ, उसके अलावा? जैसे भोपाल हो गया, यूपी का लखनऊ हो गया,
देन राजस्थान का एक सीकर या कोई एरिया, वैसे लोगों से मैंने बात करी है। आई वोंट बी एबल टू से कि यहाँ से ज्यादा पॉपुलेशन है, बट जो जो मैसेजेस को जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया है। ओके, तो बेसिकली इनका इशू है, एक तो सिस्टम से गिव अप फीलिंग हो रही है, हाँ एक कुछ नहीं होने वाला है, वो एक हाँ निराशा है सिस्टम से, हाँ हमारी बातें नहीं हो रही, हमारी बातें आगे नहीं रखी जा रही हैं, हाँ और अनएम्प्लॉयमेंट और एग्जाम्स का एक बहुत वो है, मतलब हाँ प्रेशर भी नहीं कह सकते इसे, ये है कि हम पढ़ लिख के भी कुछ कर पाएंगे या नहीं, हमारा एग्जैक्टली। कुछ होगा या नहीं पढ़ लिख के भी। हम्म दोज आर द की सेंटिमेंट्स you're या saying. दीज आर द की सेंटिमेंट्स। And what about women? Like, are women talking about different things than men, or No, same? these are the women. Majority of the women are reaching out. More than the boys, it's the women who are reaching out. I Hmm. think frustration women में ज़्यादा है for some reason. I'm Hmm. not able to understand this. Like, this is a very unique phenomena because I have been on the social media for quite so long. Hmm. लेकिन मैंने कभी कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं देखा जहां पर बॉयज से ज्यादा women एक्टिव हो। यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है। Hmm. So, Abhijit, I want to come back to this question of Gen Z because I feel like, हम लोग मोस्टली जेन जी को ऐसे ही देखते हैं कि वो मीम कंटेंट बनाती है, हम्म डॉट हो रहा है इसका, या रील्स पे रील्स करते रहते हैं, वी डोंट लुक एट देम एज पॉलिटिकल हम्म एनिमल्स। हम्म This is kind of changing that a little bit where you're thinking नहीं, okay, they're coming together. तो when you are analyzing this, इसमें क्या Gen Z ज्यादातर इसलिए आ रही है क्योंकि इनको लग रहा है ये ट्रेंड है, कुछ रील है, कुछ वायरल हो जाएंगे, कुछ कंटेंट बना के आपके साथ कोलैब कर देंगे तो हम्म हमारे भी व्यूज बढ़ जाएंगे। ये हम्म सेंटिमेंट कितना है और कितने लोग वाकई आपसे होप कर रहे हैं कि कुछ शायद ये कुछ करेंगे? सो मैं जब भी ऐसा कोई कोलैब एक्सेप्ट करता हूँ या मैं जब भी कोई ऐसा पोस्ट डाल देता हूँ, हमारे इतने फॉलोअर्स हो गए वो सब, तो मेजोरिटी ऑफ द कमेंट्स नीचे ये आ रहे हैं कि अब ये तो ठीक है, हाँ, अब हमें आगे करना क्या है, हाँ, मेक अ प्लान, वी हैव टू चेंज थिंग्स। तो जो हम्म, कॉमन सेंटिमेंट है वो ये है कि ये बस रील बनाने तक रखना नहीं है, ये बस वर्चुअली रखना नहीं है, दे एक्चुअली वांट टू ब्रिंग अ चेंज। ओके, And let me be very clear, when they speak about change, it's in a peaceful and democratic way. हम्म, Because even these kids are telling me, ये लोग बस वेट ही कर रहे हैं हमारा कि हमें कब इंटरनेशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। So हम्म, even these Gen Z kids are really disappointed by the way they are being labeled first as cockroaches and now as national security threat. हम्म, So they are feeling even more frustrated now हम्म, because these people are, some of the kids are preparing for NEET, IIT. Somebody wants to go into data, go and be a data scientist, हाँ, and now they are being called as national security threat. हम्म। Now, and what if I mean, now I want to stress a little more on this is what expectations from you are. Hmm. In a way, you've become like a lightning rod for frustrations. मतलब Yeah. सारी जनता की फ्रस्ट्रेशन आपके थ्रू अब निकलने वाली है। जनता की फ्रस्ट्रेशन भी और सरकार की भी फ्रस्ट्रेशन, दोनों की फ्रस्ट्रेशन अभी मेरे ऊपर ही है। आपके दिमाग में अभी क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं? बिकॉज लाइक यू सेड, यू स्टार्टेड दिस एज सैटायर, यू वेंट फॉर हम्म वर्कआउट, यू केम बैक, यू सेड ओहो हम्म ये क्या बोल दिया, चलो कुछ या बोल देते हैं। उसके बाद आपकी साइन अप्स बढ़े या इंस्टाग्राम बढ़े, अब आपको ये है कि भाई लीडरशिप देनी है आपको। हाँ, सो 18 मिलियन या लोग बोल रहे हैं हमें लीडरशिप दो। तो आपके दिमाग में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, क्या कैलकुलेटेड डिसीजंस आप सोच रहे हैं? डू यू हैव अ प्लान, और राइट नाउ यू आर जस्ट लाइक मूविंग फ्रॉम वन मोमेंट टू द अदर? आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। एंड मनीषा, मैं परसों तक तो यही सोच रहा था कि इन लोगों को मतलब ऐसे साथ में कैसे लाया जा सकता है, कंसेंसस कैसे बिल्ड किया जा सकता है और इनसे कैसे समझा जा सकता है कि इनके इश्यूज क्या है। और उसके ऊपर मैं सोच रहा था कि जब इनसे सजेशंस आ जाएंगे, ओपिनियंस आ जाएंगे, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। तो तब तक मैं ये सोच रहा था। लेकिन कल के बाद जो हुआ है, उसके बाद अब मेरी प्रायोरिटी यही है कि कुछ भी करके इस मूवमेंट को बदनाम नहीं होने देना है या डिफेम नहीं होने देना है, जैसे अटेम्प्ट्स किए जा रहे बाय द गवर्नमेंट। कल से ये लोग रिलेंटलेसली हैक तो ये मेरे अकाउंट्स पिछले 4 दिनों से ट्राई कर रहे थे, इनसे हुआ नहीं हैक, तो उन्होंने अकाउंट विथ हेल्ड कर दिया। लेकिन अभी सम हाउ आई डोंट नो व्हाट इज, आज एकदम से क्या होगा, व्हाट वे दे फाउंड आउट। लेकिन एक साथ इन्होंने 3-4 अकाउंट्स हैक कर लिए, वेबसाइट भी हैक कर ली। तो आई थिंक दे हैव फाउंड द मैजिक डाउन की। हो गई है, अभी हमें ये नहीं पता हैक हुआ है या क्या, बट नहीं, बट आपको वी access आर है। अनेबल, नो नो, डाउन पहले भी हुई थी हमारी, हाँ, बट वी वर एबल टू एक्सेस इट। हाँ। अभी हमारे पासवर्ड और आईडीज चल ही नहीं रहे उस वेबसाइट पर। सो अभी ये हो रहा है कि आप इसका पासवर्ड और आईडीज अब जब आप डाल रहे हैं वो कुछ वर्क नहीं कर एक्सेस डिनाइड। रहा, एक्सेस डिनाइड है। या
So we need to figure out, matlab, yeah, there has to be an answer Yeah. to what exactly happened here. Yeah. I want to know about you, Abhijit, because you have burst onto the scene. I want to, of course, talk about your political work. Before that, Mhm. I want to know, matlab, who is Abhijit? You grew up in Maharashtra, Mhm. in Chhatrapati Sambhaji Nagar, जो औरंगाबाद होता था. Yeah. आपकी पॉलिटिकल अवेकनिंग क्या रही है? आप कब पॉलिटिक्स में, आपने कब पॉलिटिक्स के बारे में सोचना शुरू करा एज अ यंग पर्सन? Mhm. आपकी पॉलिटिकल जर्नी और लैंडिंग अप इन बॉस्टन, सो जस्ट टेल अस लाइक Mhm. हु यू आर. So I grew up in Chhatrapati Sambhajinagar, which was also known as Aurangabad. Yes. It was a tier two town. So 10 years back, if you would have asked me Hmm. what my life would be, I would have never imagined that I might be able even to go out of Aurangabad, Hmm. because that is the life. That's how the life is there. A normal kid in Aurangabad at most इंजीनियर बन जाता है, या आईटीआई का कोई कोर्स कर लेता है, Hmm. या किसी ने कुछ बड़ा ही कर लिया तो हो गया, फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया. दैट Hmm. इज द लाइक मैक्सिमम एस्पिरेशंस वी हैव. Hmm. तो वहां से वहां पर पला बड़ा तो इतने कुछ बड़े सपने देखे नहीं थे तब, और ऐसा लगता था अपनी लाइफ जो भी है यहीं पर रहेगी. Hmm. बट देन समहाउ आफ्टर ट्वेल्थ मेरा पुणे में नंबर लग गया कॉलेज में. देन आई वेंट देयर. Hmm. I went to pursue engineering first, but engineering mein I just didn't feel like doing it, so I dropped out of it. Hmm. And then I did mass communication. Hmm. And after doing my mass communication, I used to like AAP for its work in health and education. And I thought because ये नए लोग आए हुए कुछ अच्छा कर रहे हैं, they are changing the political discourse. Hmm. जैसे पहली बार कोई हेल्थ और एजुकेशन पर इतना फोकस कर रहा है. Hmm. So I thought maybe I should contribute to this, because I always wanted to do something meaningful work. I was never interested in a corporate job. Hmm. तो एएपी के साथ मैं वैसे कांटेक्ट में आ गया. एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिल्ली फॉर द 2020 इलेक्शंस. Hmm. एंड आई वर्क देयर फॉर 2-3 years. Okay. एंड आफ्टर वर्किंग देयर फॉर सम टाइम आई थॉट दैट मे बी पॉलिटिक्स मेरे बस की नहीं है, Hmm. बिकॉज इट्स टू हेक्टिक, यू गेट टू मच बर्नड आउट. Hmm. कांस्टेंट काम रहता है, कांस्टेंट प्रेशर रहता है. Hmm. एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं बर्न आउट हो गया. Hmm. एंड देन आफ्टर बीइंग इन दिल्ली इट गिव मी द एक्सपोजर, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि अगर मैं औरंगाबाद में बैठकर ये सोचता कि मैं इससे आगे कहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं सोच पाता. Hmm. But being in Delhi, I met so many new people, so many successful people, so many more educated people than me. Hmm. तो मुझे ऐसा लगा अगर ये लोग बाहर जा सकते हैं पढ़ने तो मैं भी जा सकता हूँ. Hmm. अगर 10 साल मैं पहले ये सोचता तो मेरे लिए इतनी, आई वाज लाइक ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे जैसे लोगों के लिए बना नहीं है. Hmm. मेरा ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज तक ही ड्रीम हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता है मेरा. और वो भी औरंगाबाद या महाराष्ट्र की किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में. Hmm. बट डेली गिव मी द एक्सपोजर टू यू नो हैव बिगर ड्रीम्स, टू हैव बिगर एस्पिरेशंस. Hmm. तो वो देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे भी मे भी ट्राई करना चाहिए. एडमिशन होगा नहीं होगा पता नहीं. Hmm. तो मैं एक साल वापस घर पर आ गया. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई एप्लीकेशन एंड आई वाज रियली अंडर कॉन्फिडेंट, बिकॉज अगेन आई एम फ्रॉम औरंगाबाद. Hmm. आई एम नॉट समवन हु इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई और दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन सिटी. इट्स अ टियर टू टाउन. वहां से तो मुझे नहीं लगता कि हार्डली कोई बाहर जाता होगा. Hmm. तो फिर मैं काफी अंडर कॉन्फिडेंट था, बट विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स आई वॉज एबल टू फाइल द एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग. And the day I got into Boston University, I was really happy. And I was like, I would have never imagined this. So that was the happiest day of my life. Hmm. कि, okay, I finally achieved something myself, for myself. हाँ. So I was overjoyed. And I was like, okay, now my life is going to get even better now. अभी Hmm. तो औरंगाबाद से बाहर निकल कर दिल्ली तक चला गया, लेकिन अब तो मैं यूएसए जा रहा हूँ. अब तो Hmm. मेरी लाइफ और ज्यादा सॉर्ट हो जाएगी, और मैं आई बी मोर सक्सेसफुल और वॉट एवर. मतलब जो भी एक सेल्फ वैलिडेशन चाहिए होता है एक इंसान को, वो मिल गया था मुझे. Hmm. तो मैं यूएसए आ गया. एंड हियर आई स्टार्टेड स्टडीइंग पब्लिक रिलेशंस इन बॉस्टन यूनिवर्सिटी. एंड आई वाज काइंड ऑफ एंजॉयिंग इट. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अब यहीं पर कुछ करना होगा, वापस जाने में तो कोई पॉइंट नहीं है. Hmm. क्योंकि वहां तो कुछ बचा नहीं इंडिया में. जो लोग हैं उनको ही जॉब नहीं मिल रही, तो मुझे कौन देगा. ये सेंटिमेंट भी बहुत है लोगों में. अब पता है, हाँ. बच्चे काफी, मैं मिलती हूँ कॉलेज में, दे आर लाइक किसी तरह हम निकल जाएं, हम्म. किसी ना किसी तरह हम निकल जाएं, हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा, हम्म. हमको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी, पेपर लीक जो हम देते हैं वो या. हो जाता है. सो इनफैक्ट मुझे बहुत कभी कभी सरप्राइजिंग लगता है, लोग हम्म. बहुत हम्बल मीन्स से जो बच्चे हैं, या. वो भी उनको लगता है कि बाहर जाना ज्यादा आसान है बजाय कि हम यहाँ अपने घिसे जॉब मिल गया काम करें. बिकॉज कैसे करेंगे, मतलब सीट्स होती है 3-4 हजार
फॉर्म्स भरने वाले होते 4-5 लाख। सो किस किस के एस्पिरेशंस पूरे होंगे ना, वो भी तो बात है। अभिजीत, सो आई वांट टू नो आल्सो कि आपका पॉलिटिकल अवेकनिंग आपके साथ ही हुआ या बचपन में घर में भी आपके पेरेंट्स पॉलिटिकल थे, आपके यहाँ आसपास पॉलिटिकल हम्म। कॉन्वर्सेशन होती थी? एक और चीज मैं पॉइंट वो करना चाहती हूँ कि हम्म। आप दलित हैं और आपके बहुत कास्टिस्ट काइंड ऑफ अब्यूजेस आपको मिली हैं पिछले या एक हफ्ते में जो मैंने या पढ़ा है. यू कैन क्लैरिफाई ऑन दैट इफ यू वांट टू हम्म। क्लैरिफाई एनीथिंग, बट the nature of caste stuff that's thrown at you, हम्म। how is that making you feel? And growing up, like you said, in a small town with maybe not very big dreams, what हम्म। was the kind of politics you were you even politically aware, या आपको बस ये था यार कुछ करना है, कुछ निकलना है, कुछ हम्म। बनना है? नहीं, या मेरा तो सपना था, पॉलिटिक्स था? मुझे क्रिकेटर बनना था, क्योंकि जैसे हर इंडियन बच्चे का सपना होता है, तो मुझे भी ऐसा लगता है क्रिकेट बहुत पसंद है। तो मैं तो 2012 तक आई वाज वेरी पैशनेट फॉर क्रिकेट, एंड आई इवन प्लेड एट अ स्टेट लेवल। हम्म. नॉट एट जहाँ मैं रणजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रणजी, बट एट अ स्टेट लेवल आई डिड प्ले इट। तो वो काफी अच्छा लगता है, बट आई हैड टू क्विट इट, क्योंकि पापा ने तब बोला था, हर कोई तेंदुलकर ने बोलता, एंड आई एम श्योर इंडिया के हर दूसरे बच्चे ने ये लाइन सुनी होगी। हम्म. तो पापा ने तब बोल दिया, हर कोई तेंदुलकर नहीं बनता, पढ़ाई पर फोकस कर। तो क्रिकेट छोड़ दिया, एंड फिर 2014 का इलेक्शन आ गया, हम्म. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज एक्सपोज टू पॉलिटिक्स, हम्म. बिकॉज मीडिया पर तब बहुत ज्यादा चल रहा था। हाँ, एग्जैक्टली, अच्छे दिन या आने वाले हैं. हाँ, तो मेरा ऐसा था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देन आई गॉट टू नो नरेंद्र मोदी इज ऑल्सो कंटेस्टिंग, और मुझे थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता था, because BJP and Narendra Modi and all that, because growing up in a Dalit family, हम्म. like RSS, it's about supremacy and everything. तो वो थोड़ा बैकग्राउंड पता था। देन तब मैंने थोड़ा गुजरात का हिस्ट्री भी पढ़ा, तो आई वाज लाइक, यार ये तो गलत है, लाइक हाउ कैन समवन लाइक हिम कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। हाँ. तो तब से मेरा थोड़ा पॉलिटिकल अवेकनिंग स्टार्ट हुआ, और तब से मैं पॉलिटिकली थोड़ा कमेंट करने लगे ऑन माय सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर। हम्म. So that is how I started, becoming a political commentator or involved into politics. एंड व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? अभी आपके पेरेंट्स के ऊपर भी एक तो बहुत स्ट्रेस होगा क्योंकि उनके ऊपर भी मीडिया का फोकस इतना चला गया, My शायद mom, वो बिल्कुल नहीं चाहते my हैं. mom, yeah, my mom, I have to move them to a secure locations, and she's like, यार तू मत कर ये सब, ठीक है, हाँ. तुझे कुछ हो जाएगा, हाँ. हमें भी टेंशन आ रहा है, तेरे लिए आ रहा है, इवन दो मुझे थ्रेट्स ऐसे आ रहे हैं कि तेरे माँ बाप को कुछ कर देंगे, बट उनको टेंशन आ रहा है कि तुझे ये लोग जेल में डाल देंगे या तेरा कुछ कर देंगे, तू मत करना ये सब, क्या करने की जरूरत है। हम्म. सो या अभी ये सीन चल रहा है। तो आर दे रियली वरिड फॉर यू? हैव दे टोल्ड यू कि बंद कर दो? मतलब यू आर सेइंग दे हैव सेड बंद कर Yeah, they दो? are asking me to back off. They are asking me to back off, but I have told them that I'm not gonna back off, हम्म. because कब तक बैक ऑफ करेंगे ना। हम्म. और फाइनली अब बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे यार, मतलब कब तक दब कर रहेंगे, कब तक ऐसे चुपचाप सहन करते हुए रहेंगे। तो अभी पीपल आर कमिंग टुगेदर। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आगे का रोड मैप क्या है? आपने पहला कि अगर ये सब नहीं होता तो मेरा रोड मैप होता कि मैं सबसे या सजेशंस लेता हमें क्या करना चाहिए. हम्म। आप इसको एक प्रेशर ग्रुप की तरह इमेजिन कर रहे हो, है ना? यस। नॉट या रियली कि एक पॉलिटिकल पार्टी विद अ नो सिंबल. नो, नथिंग लाइक दैट एज ऑफ नाउ, बिकॉज सी, जो इन लोगों से मुझे बात करके समझ में आया ना, उनका सबसे बड़ा डिस्कंटेंट क्या है, हाँ. बीट द पार्टी इन पावर और बीट द अपोजिशन पार्टीज, nobody is trying to engage them, हम्म. nobody is ready to have a dialogue with them। मतलब ये लोग बोल रहे हैं, यार ये लोग चीजें डिसाइड कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, पार्लियामेंट में इनकी इनकी आपस में बातचीत चलती है, बट नोबडी इज एक्चुअली एड्रेसिंग द यूथ। हम्म. और ये जब हमारी सुनेंगे नहीं या हमसे एंगेज नहीं होंगे, तो हाउ विल दे एवर फुलफिल आवर नीड्स। हम्म. तो पहले मुझे लगता है वो जरूरी है, इवन दो मतलब कल जो हुआ उसके बाद थोड़ा सा मेरा प्रायोरिटी ये था कि मैं कुछ भी करके ये बता दूं कि ये मूवमेंट एंटी एंटी इंडिया थ्रेट नहीं है। हम्म. It is not a threat to India. In fact, it is, if anything, it is a movement to strengthen the democracy of India हम्म. and not to weaken the nation. तो कल से मैं थोड़ा उस पर फोकस था, बट जैसा कि मैंने कहा, आई एम नॉट गोना बैक ऑफ, हम्म. एंड वी आर गोना कीप गोइंग विद आवर प्लान वेयर वी विल सीक सजेशंस फ्रॉम द पीपल, एंड देन वी विल डिसाइड ऑन विच इश्यूज टू पिक एंड हाउ टू गो अबाउट इट। एंड द आइडिया इज टू बी अ प्रेशर ग्रुप कि आप इश्यूज यस। उठाएं. तो या इन वी इश्यूज वांट टू में. मेक, वी वांट टू होल्ड देम अकाउंटेबल। हाँ. मनीषा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी तक रिजाइन नहीं करा है। हम्म.
सीबीएसई का, रेजिग्नेशन वाला तो टाइम ही चला गया कि लोग हाँ स्कैम रिजाइन। हो रहा है, सीबीएसई का स्कैम हो रहा है, नीट में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और फिर भी एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन नहीं हो रहा है। एक टाइम होता था इंडिया में कोई भी ऐसा कुछ हो जाता था, हम्म कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन तो करता था। हम्म आज वो भी नहीं हो रहा है इस देश में। हम्म And do you want to, मतलब while you were thinking about this pressure group or party that you've come up with, क्योंकि I think एक हफ्ते में आपने बहुत सोचा होगा कि यार अब करना क्या है, हम्म did you think कि भाई हम political parties को भी support करेंगे? जैसे आप कोई इशू उठा रहे हैं, कांग्रेस बीएसपी का कोई हम्म नेता है, एसपी का कोई नेता है, हम्म एबीवीपी का कोई नेता है तो मतलब डिड यू थिंक कि हम इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज भी करेंगे इफ यू आर पोजिशनिंग नहीं, योरसेल्फ एज एन एंटी बिल्कुल बीजेपी नहीं। पार्टी? नहीं, ऑपोजिशन को हम फिर भी कहीं से भी बैकिंग नहीं देंगे। हम्म बीजेपी की अगेंस्ट हम इसलिए बिकॉज दे आर द वन सिटिंग इन द पावर, हम्म and they are the one who are not being accountable to the people, especially the youth. हम्म But that does not mean that we will align with the opposition or we will back the opposition. The most we can do is that we can put our demands, and whoever will work on this demand, हाँ we can do that. Like, first you need to address our issues. We will put up some demands, and we just want to see how many political parties are actually serious about working on them. हम्म। अब इसमें ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है और सिनिसिज्म भी है लोगों में बहुत। हम्म कुछ लोग आपको ट्रोल करें सही है, बट कुछ लोग सिनिकल हम्म भी हैं, सस्पिशियस भी हैं हम्म कि भाई आपने ट्विटर पोस्ट में डाला है कि विद आप फॉर एवर, मतलब आपने हम्म बेसिकली इंडिकेट करा है कि आप जैसे कहते हैं ना I know. जन्मजात कांग्रेसी हूं मैं, तो I वैसे know. आप, या मैं बचपन से ही आरएसएस से Yeah. तो आपका एक आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिलियल बॉन्ड है, जो Right. कि होगा भी बिकॉज आपने अपनी पॉलिटिक्स आपके साथ डिस्कवर करी है, तो उसमें हम्म। कुछ वो नहीं है कि ओ गॉड कॉन्स्पिरेसी। और वो मैं छुपा भी नहीं रहा, लाइक इफ आई हैव टू हाइड इट आई वुडंट हैव गॉन ऑन इंटरव्यूज एंड एक्सेप्टेड इट एंड बी वोकल अबाउट इट माई सेल्फ। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि भाई पंजाब के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें आपका क्या रोल होगा? क्या ये प्लेटफॉर्म बस भगवंत मान का पीआर में लग जाएगा, या क्या ये एक प्रॉक्सी बन जाएगा कि भाई इसमें पंजाब की तो ऑडियंस है केजरीवाल ही को? नहीं। हाँ इस पेज पर तो पंजाब की ऑडियंस है ही नहीं। पंजाब से कोई नहीं है हाँ, सारे मेजर आप में सिटीज सब तो वही चंगा है। सी। सारे मेजर सिटीज तो वही है जहां पर एएपी है ही नहीं। हम्म दिल्ली का ऑडियंस अब एएपी दिल्ली में भी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बट लाइक देयर इज दिस क्वेश्चन कि भाई केजरीवाल को अगर कोई प्रॉक्सी चाहिए तो अब आपके पास एक कैप्टिव 8 मिलियन का एक हैंडल है, तो हम्म वो आप कैसे, मतलब हाउ कैन यू ब्रिंग अस इनटू कॉन्फिडेंस कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत नेचुरल अलाइनमेंट है आपका एक पार्टी के साथ। हम्म। नहीं, वो मेरा रहा है इन द पास्ट। और जो जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हो वो ट्वीट उस दिन का है जब मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आए थे। हम्म एंड आई आई थिंक वो 1 या 2 दिन पहले बाहर आए थे और उसके दूसरे दिन ही मैं बॉस्टन के लिए निकल रहा था। हम्म सो वाइल आई वर्कड विथ देम, राइट, एंड दे वेंट टू जेल हाँ एंड दे वर इन जेल फॉर लाइक 18 months एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बुरा ये लग रहा था कि व्हेन दिस पीपल आर गोइंग थ्रू वर्स्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ, हम्म आई एम समहाउ लीविंग देम टू चेज अ बेटर लाइफ। हम्म So the context was that. हम्म So that was a very emotional moment because somebody is going through a very worst phase of life. हम्म Your family has suffered, and here I am, going for a better life as if anything matters to me. So the context was that, and that is why I made that post that yeah, I'm leaving, but I will always have a special place. But हम्म वो वहां तक ही है, उसके बाद से कुछ है नहीं। एंड अब ये मेरे पास जो प्लेटफॉर्म आया है, अगर मैं भी एपी के साथ चला जाऊं, ये लोग नहीं आएंगे। आई वांट टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस you're clear बिकॉज that your audience is not आप supporter, हाँ? नॉट एट ऑल, मतलब ये तो किसी को पसंद नहीं करते। एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स में ये किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, तो नॉट ये इवन अ सिंगल बिल्कुल ही पॉलिटिशियन। वैसा यूथ है जो जिसने शायद वोट भी ना करा हो सकता है ऐसा। ये यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये कंप्लीटली ए पॉलिटिकल यूथ है। आई हम्म मीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट इज दैट ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एंगेज ही नहीं होते थे आज तक। हम्म कंप्लीटली ए पॉलिटिकल लोग हैं। मतलब मुझे कितने सारे लोग बोल रहे हैं हम तो फॉलो ही नहीं करते थे यार पॉलिटिक्स, हम्म क्योंकि क्या ही करना है, वही हर जगह टीवी पर देखो तो चिल्लाते रहते, पार्लियामेंट में देखो तो चिल्लाते रहते, करते कहाँ है कुछ काम। तो ये इनका जनरल सेंटिमेंट था। बहुत ऐसे कम लोग हैं इसमें जो कोई बहुत ही पहले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हो या पॉलिटिकली वोकल रहा हो। हम्म दीज आर ऑल न्यू पीपल हु हैड नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स और इवन एवर फॉलोड पॉलिटिक्स बिफोर। But do you think that this platform has enough power today that it gives a call out, you all get out and vote for this party in the next elections, and people Why do will you
why do you think our account is being withheld and just got hacked? तभी तो हुआ है ना। अगर इतना पावर नहीं होता, इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता तो क्यों करते? आई मीन एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, आज पांचवा या छठवां दिन है, उसमें वी वर एट 22 million ऑन इंस्टाग्राम। इट टुक बीजेपी ऑलमोस्ट 12 years to get at 8 million. And this is what is most fascinating, Abhijit. I want you to put on your political hat here also to make sense of what's happening, because आपने political party के साथ भी काम किया। हमको पता है 2014 में हम बीजेपी का WhatsApp कंट्रोल पे कितना बात करते थे कि इनका WhatsApp पे जो कंट्रोल है उसकी वजह से कितने इलेक्शंस जीत रहे हैं, और इनफैक्ट WhatsApp फॉरवर्ड, WhatsApp यूनिवर्सिटी, कितना कुछ उससे आया। नाउ 12 years later you have an Instagram account, you have AI, काफी आपका कंटेंट AI से क्रिएट हो रहा है। आई थिंक ये पहला पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसने AI को भी यूज किया है। तो एक्सप्लेन हाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉलिटिकली, दिस डिफरेंस कि जो बीजेपी ने इतनी स्मार्टली इन्फिल्ट्रेट करे थे लोगों के WhatsApp, और जिससे पूरी एक कंट्री की साइकोलॉजी कैप्चर करी थी काफी देर तक बहुत सक्सेसफुली, जिनसे उन्हें इलेक्टोरल डिविडेंड्स मिले। अब क्या आपको लगता है वो इंस्टाग्राम पे कोई और पार्टी कर सकती है, या आप भी कर सकते हैं, या इज दिस यूथ जस्ट a reel watcher and it's a 3-second dopamine hit and forgotten? No, Manisha, we have to look at the fact that आज से 5 साल पहले हम में से कोई भी इमेजिन कर सकता था कि 22 मिलियन बच्चे एक साथ आकर एक अपना कंप्लीटली अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, इवन ऑन ऑनलाइन। मतलब आपने देखा ये, मैंने देखा ये, हम वी हैव बीन फॉलोइंग पॉलिटिक्स फॉर लास्ट 8-10 years। हमें से कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था, बिकॉज वी हैव बीन देयर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स इन आवर सर्कल्स। वहां पर हर जगह, हर एवरी स्पेस वाज डोमिनेटेड बाय द बीजेपी सपोर्टर्स। नाउ इंस्टाग्राम हैज बिकम अ प्लेटफॉर्म where it is dominated by non-BJP people. I see that a lot. Actually, a lot of viral reels are anti-BJP. Yeah, exactly. Or even not anti-BJP, they're anti-establishment. Anti-establishment, and who's the establishment in today's time? BJP. But I think, there's a difference कि एक होता है जो बहुत सोच समझ के बीजेपी का वो कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। एक होता है जिसको लग रहा है यार हमारी सड़कें खराब है, हमारे मैनुअल्स ठीक नहीं हो रहे, हमारी सिटीज का क्या बुरा हाल है, क्या गंदा सिस्टम है, तो वो बहुत दे रहा है जनरली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने हालातों पे बेसिकली सैड है, और वो अपने हालात को देख के बोल रहा है कि सिस्टम घटिया है, सिस्टम घटिया है। शायद उसका एक पिन पॉइंटेड बीजेपी का विरोध नहीं है। तो I feel that is also like, हाँ, you are absolutely on point here। और जैसे अपने व्हाट्सएप की बात की, इन लोगों ने व्हाट्सएप तो पेनिट्रेट कर दिया, ठीक है, बट ये इंस्टाग्राम पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। एंड पॉलिटिक मतलब एक पॉलिटिकल ओपिनियन दूं इस पर, तो द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज ये जिन मुद्दों पर सरकार बनाई थी इन्होंने फर्स्ट टाइम, आज भी ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इनके पास नया कुछ बोलने को है नहीं। दे हैव बीन सेइंग द सेम थिंग्स दे हैव बीन सेइंग सिंस नरेंद्र मोदी स्टार्टेड हिज पीएम कैंपेन। डिलीवर कुछ हुआ नहीं है, ग्राउंड पर कुछ हुआ नहीं है, बट वो रिटोरिक वो भी है, वही है जो 2014 में था। एंड नाउ द पीपल आर समवेयर रियलाइजिंग इट कि ये बस रिटोरिक है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से आई डोंट थिंक उनका अभी जो कम्युनिकेशन प्लान है वो उतना इफेक्टिव है, बिकॉज दे हैव नथिंग टू शो इवन आफ्टर 12 years। मतलब इतना एब्सोल्यूट पावर, ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी है, अगर हम साउथ की 1-2 स्टेट्स छोड़ दे तो। दे हैड द एब्सोल्यूट पावर ओवर द कंट्री, लेकिन इतने 12 साल में एक स्टेट भी ऐसा नहीं बना पाए जिसको बोल पाए यहाँ पर इंडस्ट्रीज हम सबसे ज्यादा बना दी, यहाँ पर हमने जॉब सबसे ज्यादा क्रिएट कर दी है, सिंगापुर बना दिया किसी शहर हाँ, या हमने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सिंगापुर जैसा बना दिया। एक भी स्टेट नहीं है, डिस्पाइट हैविंग such an absolute power. Yeah. And you're right, like I want you to use your PR degree also here and tell us कि बीजेपी की PR में क्या गलत जा रहा है इंस्टाग्राम पे। क्या गलत कर रहा है? आई थिंक उनका जो सबसे गलत जा रहा है वो यही है कि वो आज भी कम्युनल पॉलिटिक्स पर ही खेलने को ट्राई कर रहे हैं, और वो आज भी अपोजिशन को ही गाली दे रहे हैं हर चीज में। बिकॉज आप जब नए नए आए थे तब तक ठीक है, कांग्रेस का रूल था, जो भी खराब था सिस्टम, लोगों को लग रहा था यार 4-5 साल तो लगेंगे ठीक करने में, तो अभी दे आर राइट टू ब्लेम द कांग्रेस और द यूपीए। तो तब तक लोगों ने सुन लिया। सेकेंड टर्म तक भी यही था कि नहीं कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, अभी हो ही जाएगा, पीपल वर स्टिल होपफुल। लेकिन आफ्टर 12 years ऑल्सो यू आर ब्लेमिंग द अपोजिशन, एंड नॉट जस्ट द अपोजिशन, यू आर ब्लेमिंग द प्राइम मिनिस्टर हु डाइड इन द 1960s। और दूसरा आपका कम्युनल एंगल,
अब लोगों को रियलाइज हो रहा है यार ये हर चीज में ना हिंदू मुस्लिम ही करते हैं, इनको कुछ भी हम जेन्युइन डिमांड भी पूछे तो हमें यही बोलते हैं कि देखो मुसलमान क्या कर रहा है, उसको देखकर हम खुश हो जाए क्या? हाउ विल माई लाइफ बी बेटर किसी मुस्लिम की लाइफ खराब करके? उससे मेरी लाइफ में क्या बदलने वाला है? उससे मुझे कब तक इंसेंटिव दो, इमोशनल या जो भी इंसेंटिव मिलता है, वैलिडेशन मिलता है ऑफ बीइंग सुपीरियर, उससे तो घर नहीं चलता है ना, उससे तो जॉब नहीं मिलती है। तो वो लोगों को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है, स्पेशली द यूथ। तो इसलिए उनका जो स्ट्रेटेजी है वो कंप्लीटली फेल कर रहा है, बिकॉज उनका रिटोरिक चेंज नहीं हो रहा है। आप एक ही चीज बार बार परोसे जा रहे हो, एक ही डर एक्चुअली आप बार बार परोस रहे हो। एग्जैक्टली। लास्ट क्वेश्चंस आई हैव फॉर यू, वन इज यार बिगेस्ट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट योर मूवमेंट। आई मीन मतलब आई फील मूवमेंट अभी, आई ऑल्सो फील कि अभी एक ही हफ्ता हुआ है तो वी कांट कीप यू नो, बट स्टिल वन इम्पोर्टेंट थिंग टू थिंक अबाउट इज कि यार जब भी कुछ हालात बदलते हैं इंडिया में तो लोगों को ग्राउंड पे आके काम करना पड़ता है। चाहे आरएसएस और बीजेपी को कितना भी बोलने की ये है वो है, लेकिन वो ग्राउंड पे आरएसएस का कार्यकर्ता लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। तो वैसे ही अब कॉकरोच जनता पार्टी, आप हैं बॉस्टन में बैठे हैं, आपका पूरा क्लाउड ऑनलाइन है, इसमें क्या बदलेगा ग्राउंड पे जब तक आप लोग ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे? सो हैव यू थॉट अबाउट दैट कि यार हम इंस्टाग्राम पे बैठे बैठे कैसे कुछ कर सकते हैं जब तक आप जमीन पे ना उतरे? नो आई टोटली अग्री विथ यू, बट एज आई वो सेइंग, अगर हम ये 5 साल इमेजिन भी कर लेते कि 5 साल पहले ऑनलाइन भी ऐसा कोई मूवमेंट बन पाता था क्या? नो बडी वुड हैव इमेजिन दिस, राइट? तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, जहां पर 5 साल पहले लोग बोलने से भी डर रहे थे, अब वो बोलना शुरू कर रहे हैं। 5 साल पहले लोग जब कंसोलिडेट होने से डरते थे, अब वो 20 मिलियन में कंसोलिडेट हो रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और धीरे धीरे ये आपको ग्राउंड पर भी रिफ्लेक्ट होगा, बट आई थिंक दिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज थिंग, that people are actually consolidating together, and that too openly. Now they are no longer afraid. They are with pride saying yes, we belong, we support the cockroach जनता पार्टी। तो वो फियर जो चला गया है, मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी जीत है यार, क्योंकि मैं खुद उस फियर में जिया हूँ जहां पर आई वाज सराउंडेड बाय सो मेनी बीजेपी फ्रेंड्स एट पॉइंट इन माय लाइफ इन 2019 2020। इवन सम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स वर बीजेपी सपोर्टर्स। तो मैं कई बार छोड़ता ऐसा सोचता था यार कुछ बोलते नहीं है वरना फालतू में वही आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। बट नाउ वी हैव कम टू अ पॉइंट जहां पर मेरे खुद के फ्रेंड्स जो बीजेपी सपोर्टर्स रहे, दे आर सेइंग ब्रो तूने तो क्रेजी कर दिया यार एकदम, मैं फॉलो कर रहा हूँ तेरा पेज। तो यही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर ये डर खत्म हो गया है ना तो लोग जमीन पर भी आएंगे। वो डर खत्म होना जरूरी था। दैट वाज द बिगेस्ट रोड ब्लॉक। The other thing I was saying, like what you were saying ना कि जो आप पे फॉलोअर्स हैं सारा ज्यादातर, उनको सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे लगता है एक चीज, ये मेरी थियोरी है, मे बी यू कैन टेल मी व्हाट यू थिंक, कि एक टाइम पे इसमें बहुत बड़ा मीडिया की भी गलती है, क्योंकि आपको आपके मुद्दे कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं टीवी पे, है ना? सबसे ज्यादा मीडियम जो है जो लोग देखते हैं वो टीवी न्यूज है। एक टाइम पे अगर दिल्ली में गैंगरेप हुआ है, ऑल विमेन आर अपसेट अबाउट इट, वी आर प्रोटेस्टिंग, हमको सुनवाई मिलती थी ना न्यूज चैनल्स में, हम डिबेट करते थे, डिस्कशंस करते थे, हमारी बातें कही जाती थी। अभी आपका अग्निवीर हो जाए, नीट हो जाए, पेपर लीक हो जाए, 100 लोग मर जाएं लाइट स्टॉर्म में उत्तर प्रदेश में, आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और मीडिया एक प्रेशर कुकर के तरह, एक प्रेशर वाल्व की तरह काम करते हैं कि थोड़ा स्टीम निकलते जाए। What are you hearing about media? Like, are there conversations about media happening among? Of course. Why do you think I have to make an open statement that I won't be going on any Godi media channel? It was the pressure of these kids. So they know कि ये गोदी है और यहाँ पे हम they were like please don't engage with any of those media houses. वो कुछ नहीं करते हैं। उनको बस हिंदू मुस्लिम का ही डिबेट चाहिए, वो उनका टीआरपी उसी से खाते हैं। सो उन्होंने मुझे बोला इट विल बी बेटर इफ यू डोंट गो ऑन देम। आई सेड ओके आई विल डू दैट, आई वोंट गो। लाइक हाउ अबाउट पुटिंग अ पब्लिक स्टेटमेंट, बिकॉज उनको भी मेरे से अश्योरिटी चाहिए थी सो दैट मैं अभी बोल दूंगा और बाद में मैं चला गया तो क्या। So I have to make a public statement based on their suggestions that we won't be engaging with any kind of Godi media or Godi anchors. You so gave one to India Today though. Yeah, but it was based on the anchor to be honest. So, मुझे इंडिया टुडे से और भी लोगों के फोन आए थे, but I did not respond. Okay. So how many people are calling you from Republic and Z News? Non-stop, many people. NDTV, Z News, Republic, everybody is calling. Even ABB, everybody is calling. So non-stop, they want you to be there. Yeah, how but about going there and putting your point across? Why do you feel like you will not
like it's a waste I of mean, time. many people have tried that in the past and क्या मिला है? लेबल क्या मिला है? टुकड़े टुकड़े. टुकड़े टुकड़े गैंग, हाँ. नक्सली, हाँ. अर्बन नक्सल्स. तो सो आप. मेरा पॉइंट कुछ भी हो, वो उसको अगर एंटी इंडिया ही एस्टेब्लिश कर देंगे, मुझे टेररिस्ट ही डिक्लेयर कर देंगे, तो मैं, हाउ डज इट सर्व द पर्पस? हम्म. So you don't want to go there at all. And also, I think it's a time to, make a statement that we need to disengage with such kind of compromised institution. It's very necessary. Because the more we engage, मैं चला जाऊंगा, उन लोगों को टीआरपी मिल जाएगा मेरी वजह से. हाँ. तो मैं क्यों उनकी मदद करूं टीआरपी लेने में? हम्म. मैं डिसएंगेज करूंगा तभी तो उनको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा यार कि वी कैन नॉट कीप डूइंग दिस नाउ. हम्म. So it's also about making that statement. No, I completely agree with you. And News Laundry, we've been saying this for a long time now. हम लोग तो कब से ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिपेंडेंट मीडिया की सबसे ज्यादा जरूरत है. Half the problems in this country are created by this media only, I would Totally. say. Yeah. And you need a media which is free, which is, based. We are completely ad free. We are driven Mhm. completely by subscriptions. We have a lot of people who actually put faith in us exactly कि भाई Yeah. जितने भी हम पैसे देंगे कोई बात नहीं, तुम करो Mhm. जो करना है. So I feel like that's a very important thing. And also, I was trying to give a message to the opposition as well by making this statement. Stop engaging with that media. You always complain about that media never shows us, media never highlights our issues. Then why do you engage with them? हम्म. What is the need? हम्म. एक तरफ आप एंगेज भी करते हो और दूसरी तरफ आप उनको सुनाते भी हो. एंगेज करना बंद कर दो. हम्म. देखते हैं कितने दिन सस्टेन कर पाते हैं वो अपना मॉडल, बस रूलिंग पार्टी के इस पर. हम्म. कितना वो. हाँ, फिर लड़ेंगे किससे? हाँ, एग्जैक्टली. So now, okay, my absolute last question, and then I want to let you go because it's late night. This whole thing of internet virality, Abhijit, it really scares me because I feel internet is a very brutal medium. किसी को वो सर पे चढ़ा देगा तो उसी दिन उसको गिरा भी देगा. गिरा भी देगा. आज आप हीरो हो, आज आप जनता की होप हो, जेनजी की होप हो, कल वो आपको दगाबाज धोखेबाज करके नीचे भी गिरा. So that does that fear. Are you aware कि भाई the nature of internet virality is very mercurial. You never know क्या होने वाला है. और दूसरा, एक क्लाउड चेजिंग होगी. आपके पास 20 मिलियन 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं अभी. काफी लोग 22, आपसे 22, 22. 22. Insane. That's like insane. I mean, you should, there should be Boston, Harvard, and all should do a paper on this cockroach and how did this happen so quickly. My university has reached out to me, by the way, for that. I know, like this has to be studied academically कि हुआ क्या है ना. मतलब it's the first I think kind of internet galvanization जो AI के जमाने में हुआ. I'm wondering if that had a role to play, but just this one, I mean, it's insane, 22 million people. But lot of people now will come to you simply because they want that 22 million audience. जैसे आपने TRP बढ़ाने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, वैसे ही लोग numbers के लिए आपको बोलेंगे कि मैं भी वायरल हो जाऊं. ऑलरेडी कर रहे हो, रिक्वेस्ट भेजते कोलैब एक्सेप्ट कर लो, बट मुझे भी तो देखना है ना. So कोलैब how भी तो are you dealing with this whole understanding of internet? Are you like taking a step back and understanding it? How are you seeing it? Because मतलब like I said, you're also a student of PR, so you can also view this from a different. Of course, because मुझे समझ में आ रहा है कि many of the people are just trying to get the reach out of us. But हमें भी डिसाइड करना है कि अगर तुम हमारा सपोर्ट कर रहे हो in the issues that we are talking about, obviously we will collab. But you are just expecting our reach, we are not going to give you that. क्योंकि I know how this industry works. और मैंने इस पर तो अभी पूरा मास्टर्स कर लिया है. और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे, मतलब कुछ है मेरे बचपन के फ्रेंड्स, दे हैव बीन रीचिंग आउट टू मी औरंगाबाद से ही. लाइक दे आर वेरी सरप्राइज, यार तू तो बहुत बड़ा इंसान बन गया, हर जगह तेरा ही दिख रहा है टीवी पर भी. तो मैंने बोला ये कुछ नहीं है, 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ. ये जितने जल्दी सर पर उठाते हैं एज यू सेड, उतने जल्दी पटक भी देते हैं. मैंने बोला इतना कोई ओवरवेल्म होने की या ऐसा समझने की जरूरत नहीं है. तो देवर लाइक नहीं, अब तो सब सेट है, लाइफ सेट है. मतलब कोई लाइफ सेट नहीं है. इंडिया आऊंगा ना, तिहाड़ जेल से, एयरपोर्ट से तिहाड़ जेल लेकर जाएंगे मुझे. So what's the next plan for Cockroach Janata Party? Tell us quickly. The next plan is to reach out to the people. ये लोग अभी हमें डराने को ट्राई कर रहे हैं, धमकाने को ट्राई कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि ऐसा करके हम आगे कुछ करेंगे नहीं, हम अपना मूवमेंट यहीं पर बंद कर देंगे, वेबसाइट डाउन करके. They are just trying to intimidate me. But we are not going to back off. We are going to go with our plan. We are going to engage with the youth, and we will seek suggestions from them. We'll try to understand their issues, and after that, we will try to decide what next course of action should be. So what are you imagining this platform to be right now? 22 million people. What is this platform going to look like in an ideal scenario? आप
EDIT, पुलिस, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सबको एक तरफ कर दो. Imagine actually that you were living in a democracy that valued dissent, which it does right now, and you didn't have any of the pressures of death threats, police, आप कह रहे हो तिहाड़ नहीं है, आपके पास 22 million followers हैं, तो आप इसको कैसे इमेजिन करते कि 6 महीने में ये प्लेटफॉर्म कैसा दिखता, क्या होता? 6 महीने में ये प्लेटफॉर्म इस गवर्नमेंट को इतना अकाउंटेबल कर देता कि इस कंट्री में अगर एक भी मिसहैप होता था, जैसे नीट का हुआ है, द एजुकेशन मिनिस्टर वुड हैव टू रिजाइन. और अपोजिशन को भी हम कहीं ना कहीं सिखा देते कि मुद्दे उठाना शुरू करो. बस ऐसे ही फालतू में ही आप लोग ना चीखना चिल्लाना बंद करो. जस्ट टॉक टू द यूथ, कम टू अस, टॉक टू अस एंड गेट द रियल इश्यूज. तो हम उसको इस तरह देखते हैं अगर इन एन आइडियल डेमोक्रेसी देखा जाए, बिकॉज 22 million is not a population that you can afford to ignore. If you are saying something, you are bound to do it, because these people are going to be the voters tomorrow. So you need to hear them out. Because today, most of them are voters today only. Yeah, also today, yeah. और ये तो अभी 22 million 5 दिन में हुए हैं. क्या पता 10 दिन बाद 50 million हो. The way things are going, ये लोग रुकने को तैयार नहीं है. कमेंट्स में लिखते रहते हैं ये लोग नेक्स्ट टारगेट 50 million 50 million. So yeah, we have that kind of power, but वही अगर डेमोक्रेटिक वे में सब कुछ हो तो we can create that kind of pressure to make the government accountable. So accountability group की तरह आप इसको, चाहे वो petitions हो, चाहे वो conversations हो, issues हो, accountability group, and we want a youth focus politics. मतलब कि इंडिया का पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो हो ना वो थोड़ा यूथ फोकस हो जाए. हम कब तक वही पुरानी बातें करेंगे बाबर आजम के जमाने की, कि 1500 सदी में ये हुआ था, औरंगजेब के टाइम पर ये हुआ था, बाबर के टाइम पर ये हुआ था. हिंदू मुस्लिम करते क्या होगा? थोड़ा मतलब बात कर लेते ना कि एजुकेशन सिस्टम कैसे अच्छा हो सकता है, एआई में इंडिया कैसे आगे बढ़ सकता है, एआई में इंडिया के यूथ को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं. वो नहीं हो रहा है, तो वो एक फोकस है. ओके, great. Thank you so much, Abhijit, talking to us. Before you leave, I want to tell cockroaches that one of the manifesto points I really like, which is the 4th manifesto point, which says कि अंबानी अदानी मीडिया के लाइसेंसेस कैंसिल हो जाने चाहिए, गोदी एंकर्स का अकाउंट इन्वेस्टिगेट होना चाहिए. सेकंड इशू पे तो मेरा कोई वो नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑन कॉर्पोरेट कंट्रोल ऑफ द मीडिया, पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द मीडिया, हम लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी मीडिया कभी पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं कर सकती. आपको बस मतलब पतंजलि के गुण बताएंगे और बताएंगे कि हम कैसे आगे जा रहे हैं, विश्वगुरु बन गए, मेलोडी और मेलिनी क्या हो रहा है. So we must support independent media. Subscribe to News Laundry, guys. Whoever's watching this interview, it's good to be part of a movement that wants to awaken the youth, but the media also has to be awakened in a country. I think in a democracy, the media plays a very huge role, and you guys can step in by supporting independent media like News Laundry, which is completely ad-free, which works to bring your issues, precisely your issues, to the fore. Every single cockroach out there, follow News Laundry right now. Yes, cockroach की leader ने बोल दिया follow News Laundry right now, so you better follow and you better subscribe. Best of luck, Abhijit. I know this is thank you so much for taking out the time, and I know it's a very overwhelming time for you. हमने इससे पहले भी बात करी, recording से पहले, and I know that sometimes when you don't imagine, and you're thrown into something like this, it's very difficult to navigate. But I really hope you have good counsel and you have good friends and good advice, and you really, take this to the next level, which is really start something. You've started something, but really keep at a movement. You have to sustain it. Sustain it and puts young people at the center. Young people really need it. They actually really need a platform where they can vent, where they can make changes, where they can actually give ideas and improve political discourse. बुड्ढों ने तो कर लिया, नहीं हुआ उनसे, अब young लोगों की बारी है. उनसे होगा भी नहीं. Thanks, Abhijit. Best of luck and take care. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.